جتنی دفعہ وہ آپ کو ڈی فلاور کرے گا اللہ اتنی دفعہ آپریٹ کرے گا آپ کے اوپر اور آپ کو ری فلاور کر دے گا تاکہ آپ کے میاں کو سوری میاں کو نہیں ری فلاور کر دے گا تاکہ آپ کے بندے کو ہر دفعہ آپ کو ڈی فلاور کر کے مزہ آئے. یار یہ کیسی کیسی گھٹیا جنت ہے یار آپ کی. یو کال دس جنت. دیکھیں ہندوؤں میں کیا ہوتا ہے ایک اور کسی ریلیجن میں ایک ہی ساتھ کون سا رہتا یار ہے. بہن بات سنیں ہندوؤں کو بھی چھوڑ دیں فار دا سیک آف اللہ. پہلے یہ دیکھیں آپ کا اللہ کیا کہہ رہا ہے, اس کے بعد جب آپ اللہ کو دیکھ لیں گے اللہ کہہ رہا ہے پھر ہندوؤں پہ جانا, کرسچن پہ جانا, یہودیوں پہ جانا, ایتھیسٹ پہ سب جگہ جانا. مطلب ہیومن کو بنایا اسی طرح ہے نا. مطلب کیوں ارے بہن بات سنیں میری, اگر ہیومن کو ایسے ہی بنایا ہے تو عورت کو کے لیے بنوایا اللہ نے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, مجھے ایک بات بتائیں, کے لیے بنایا تھا. مجھے ایک بات بتائیں, مجھے ایک بات بتائیں, سنیں جنت میں فرشتے کرتے ہیں, وہ عبادت کرتے ہیں. وہ میں دوبارہ سے سوال کرتا ہوں کیا جنت میں فرشتے؟ بہن میرا سوال کچھ اور ہے, بہن میرا سوال کچھ اور ہے, بہن میری پیاری بہن سنیں میرا سوال کچھ اور ہے, کیا فرشتے کرتے ہیں؟ وہ تو کچھ ان کو آپ ہیومن سے نہیں کریں نا کیونکہ بہن میں دوبارہ سے پوچھتا ہوں نہیں کرتے. میرا سوال کیا, نہیں کرتے. میرا سوال کیا بہن؟ obviously نہیں کرتے. obviously تھینک یو سو ویری مچ, تھینک یو گاڈ. اوکے you're welcome. ہم بات اور ابھیویکتی کی स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं. उदाहरणों छवियों और संदर्भों सहित वीडियो केवल मनोरंजन सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है. हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है. जय हिंद दोस्तों अरबों के जहनी गुलामों के जितने भी आलिम हैं सब के सब साइंस को अपने दीन के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं. इन अरबी गुलामों का मानना है उनकी मुकद्दस किताब में साइंस भरी पड़ी है, जबकि जिस किताब को ये लोग खालिक कायनात की किताब बताते हैं उस किताब में लिखी हर एक बात खुद को कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट जरूर करती है. पूरी दुनिया में इस किताब से ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन रखने वाली कोई दूसरी किताब नहीं है. रही बात इस किताब में साइंस के होने की, तो साइंस का लफ्ज़ ही इन लोगों की डिक्शनरी में नहीं है, इसलिए आज तक ये लोग वैज्ञानिकों को भी साइंसदान कहते हैं. ये वीडियो पिछली वीडियो का ही अगला पार्ट है. पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसे क्लिक करके आप देख सकते हैं. आप इस वीडियो में देखने वाले हैं एक मोमिना अपने दीन में साइंस होने की बात करती है, ब्लैक होल और बिग बैंग की बात करती है, पर एडम भाई जब एक एक करके हर बात को झूठा साबित करते हैं तो किस कदर चिढ़कर सनातन पर दोमत लगाने लगती है. लेकिन एडम भाई इस मोमिना को वहाँ भी नहीं छोड़ते हैं, मोमिना के हर सवालों का जवाब उसी की बातों से ही देते हैं. इस वीडियो में कहीं एक एक बात सुनने लायक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा. जी दीदी अनम्यूट कर ले. جی سوری وہ اس وقت کوئی آ گیا تھا. تو اب دیکھیں میں مسلمان ہوں, ابھی آپ کو ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دے کہ میں ابھی اسلام چھوڑ دوں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اسلام غلط ہے. بہن دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے کیا پتا کہ آپ کا مائنڈ کس طریقے سے ورک کرتا ہے. تو سنگل سٹیٹمنٹ میں تو اسلام کوئی نہیں چھوڑتا. میں آپ کو 500 چیزیں بتاؤں گا, آپ کو 500 میں سے ایک چیز ہٹ کرے گی. آپ کو ایک عورت ایک فیمیل ہو کے آپ کو ایک فیمیل کی ڈیلی ٹھکائی ہونا وہ آپ کو اسلام سے باہر نہیں نکال سکتی. تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کہاں پہ ہے. آپ لاجیکلی آپ مجھے بتائیں, سائنٹیفکلی بتائیں, آپ مجھے بتائیں کہ کس پوائنٹ پہ ریویل ہوا. ٹھیک ہے چلیں. اچھا لاجک اور سائنس کے اوپر بات کرتی ہے رائٹ. جی جی اگر لاجک اور سائنس سے قرآن غلط ثابت ہو گیا تو کیا آپ اسلام چھوڑیں گی؟ یہاں پہ مجھے کنفرم کریں کہ اگر سائنس کے مطابق بھی اسلام غلط ہو گیا اور لاجک کے مطابق بھی اسلام غلط ہو گیا, کیا آپ اسلام چھوڑیں گے؟ اگر وہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتے, پہلے آپ مجھے اپنی ڈیپینڈ نہیں کرتا. بہن دیکھیں اگر یہ غلط بات ہے نا, یہ تو غلط بات ہے نا. آپ نے مجھے چیلنج دیا ہے. میوٹ کر کے دیکھیں بات سنیں میرا, آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کس لیول کے اوپر اسلام کو غلط ثابت کروانا ہے. میں اس لیول پہ غلط ثابت کروں گا. ہسٹوریکلی اسلام غلط ثابت کرا دوں گا, لاجیکلی اسلام غلط ثابت کرا دوں گا, ہسٹوریکلی اسلام غلط ثابت کرا دوں گا, سائنٹیفکلی اسلام غلط ثابت کرا دوں گا. آپ ہر وے میں مجھے کر کے دکھائیں. ہر وے میں آپ کو بدل دیں گے. ہاں آپ ضرور بدل سکتے ہیں. ہمارا تو الحمدللہ اسلام پہ اچھا بلیو ہے. تو پھر فائدے کوئی نہیں بات کرنے کا. اگر آپ کہتی ہیں کہ میں ساری چیزوں کو دکھا بھی دوں اور آپ پھر میں اگر آپ کو دیکھتے ہیں نا, اگر آپ کو میں ڈیفینڈ کر پاتی ہوں یا نہیں دیکھتے ہیں نا, آپ شاید چینج ہو جائیں. بھائی بہن بات سنیں, ڈیفینڈ کر پاتی ہوں وہ بات کی بات ہے. اگر آپ کو بھی نظر آ گیا کہ ہاں یار دیر از اے سائنٹیفک ایرر ہیئر, ول یو لیو اسلام؟ میں پہلے پوری ریسرچ کروں گی نا اپنی. ایسے تو کوئی اپنا ایمان نہیں چھوڑتا نا. یار وہ تو میں آپ کی باتوں کو بیٹھ کے میں پہلے خود بھی اپنا پراپر پورا کروں گی قرآن. وہ تو بات کی بات ہے. ابھی پہلے آپ مجھ سے ڈبیٹ تو کریں. میرے پاس بھی بہت ڈبیٹ ہے. پھر مجھے بتائیں, آپ مجھے بتائیں کہ سائنٹیفکلی قرآن میں کیا کریکٹ ہے, پھر آپ بتائیں.
अगर देखिए आपने अगर आप कुरान आप खोलें, बताएं ना, कुरान खोले, कुरान में कौन सी ब्लैक आयत? होल की बात हुई है, डन, मुझे एटम्स ब्लैक होल कुरान मॉलिक्यूल। में दिखा दें। मेरी एक वीडियो है जो कि मोहन्नस के साथ मेरे चैनल पे स्ट्रीम है, ब्लैक होल की, मैंने अम्मा रेडी की हुई है उसके अंदर। तो वो मैंने की है कि ब्लैक होल कुरान में कहीं पे भी नहीं है। अगर आप मुझे ब्लैक होल कुरान में बना दिखा दें, मैं अभी के अभी इस्लाम कबूल करता हूँ। दें ब्लैक होल, दें। मुझे वो तो देखें कुरान में, हाँ वाजे देखें, कुछ भी नहीं है। देखिए अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि तो मुझे भाई इतनी, कुरान में ब्लैक होल नहीं है फिर। वाकिया है, सूरह अल वाकिया है, जो कि इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो उसको बेसिकली इंटरप्रेट करते हैं नहीं करते, चीजों को, नहीं ये नहीं होता तो कुरान में clearly नहीं है, अल्लाह ने नहीं दिया ब्लैक होल। आपको उसकी तफसीर हर ओके, मैं सेंटेंस की तफसीर खोलता एक हूँ, पैराग्राफ में मैं तफसीर। तफसीर खोलता हूँ, कुर्तुबी की, इब्ने कसीर की, जलालुद्दीन सयूती की, मैं ये सारी अर्ली तफसीरें खोलता हूँ, मुझे ब्लैक होल दिखा देंगे। सूरह एक में अच्छा नहीं, मुझे पढ़ा हुआ मैंने कुरान, लेकिन ऑब्वियसली अभी वो तो हिफ्ज तो नहीं करा हुआ ना, तो टाइम लगेगा लेकिन निकालने फिर में। बात ये है कि फिर फायदा क्या है? अब अगर आप एक क्लेम कर रही हैं, यू हैव टू गिव मी द एविडेंस ऑफ दैट क्लेम। अच्छा आप जरा 2-3 मिनट रुके, मैं निकालती हूँ, पढ़ी मैं मैंने रुकता हूँ, साहिल साहब सुपर चैट ले लेंगे मीन टाइम। जी जी। अब हम उसको बात करते हैं जिसमें Let's do it. साइंटिफिकली हम इस्लाम को प्रूफ कर सकते हैं ओके, कुरान के जरिए। ब्लैक होल की बात करनी है कि नहीं करनी? कोई और चीज चैनल पे, कोई और चीज पे जाना है? देखिए ब्लैक होल की बात सूरह वाक़िया में हुई है, देन आई स्वेयर बाय द सेटिंग प्लेस ऑफ द स्टार्स एंड इंडीड इट इज अ माइटी ओथ। तो इसमें एक तरह से सेटिंग अगर हम प्लेस ऑफ द उसको स्टार, बहन ये इंटरप्रेट बताएं, एक करें सेकंड, आयत दोबारा पढ़ें, जरा स्लोली पढ़ें मेरे साथ, वन बाय वन वर्ड बाय वन। आई देन स्वेयर बाय द हाँ सेटिंग प्लेस ऑफ द, स्टार्स, ओके, क्या स्टार्स की कोई सेटिंग प्लेस होती है? यूनिवर्स ही इससे बना हुआ है ना, ग्रेविटेशनल एंटाइटल्स उसी से हो रहा है सारा। नहीं, वन सेकेंड, दोबारा रिपीट करता हूं मैं आपको। लेट मी आस्क यू अगेन, क्या स्टार्स कभी भी सेट होते हैं? कभी भी नहीं होते। हमें जब सूरज नजर आना शुरू हो जाता है तो स्टार की लाइट इतनी कम होती है कि हमें स्टार्स नजर नहीं आते। स्टार्स कभी सेट नहीं होते, वो वहीं पे रहते हैं, हमें नजर आना बंद हो जाते हैं बिकॉज के सितार जो हैं उनकी लाइट कम है और मून की लाइट ज्यादा है। तो दिस इज अ साइंटिफिक एरर इन कुरान जो आप बोल रही हैं। बट इट मींस ना कि सेटिंग प्लेस ऑफ स्टार्स एक्चुअली वेयर द स्टार्स इज देयर अ सेटिंग प्लेस ऑफ द स्टार? मतलब जहाँ पर स्टार्स फॉल हो रहे हैं एट द एंड ऑफ देयर फॉलिंग लाइफ। प्लेस ऑफ द स्टार, इज देयर ओके, स्टार्स कभी फॉल होते हैं? हाँ टूटते हैं स्टार्स। इधर होते नहीं, वो टूटते हैं ना, फॉल तो नहीं ना होते। देखिए जब सन अपनी लाइट छोड़ेगा तो कैसे छोड़ेगा? हाउ विल इट डू? व्हाट विल हैपन इज कि सन के अंदर हर लम्हे में हाइड्रोजन और हीलियम के धमाके हो रहे हैं। दैट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द वर्ल्ड। हाइड्रोजन इज H, हीलियम इज H2 और H3, व्हाटएवर, यू कैन वेरीफाई दैट। उसके धमाके हो अच्छा रहे हैं। ये देखिए आप एक सेकंड बहन, लेट मी फिनिश, लेट मी गिव यू सम साइंस। मैं अभी आपको कुरान नहीं दे रहा तो ब्लास्फेमी किसी ने की हो रही, मेरी बात सुन ले पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक हमें बेसिक्स ऑफ द साइंस नहीं पता लगेगी ना, हम इन चीजों को समझ सकेंगे। तो बेसिक ऑफ द साइंस ये कहती है कि आज से 4 बिलियन ईयर्स लेटर ये जो सन है ना, इसमें धमाके होना बंद हो जाएंगे। सन इज अ स्टार एज वेल। आफ्टर 4 बिलियन ईयर्स सन में ये धमाके होना बंद हो जाएंगे और सन विल गो डार्क, राइट? तो सन कभी कहीं पे सेट नहीं होएगा, इवेंचुअली कहीं पे गिरेगा नहीं, वो यहीं पे पड़ा पड़ा डार्क हो जाएगा। दैट्स इट। तो दिस इज रॉन्ग, साइंटिफिकली इट इज रॉन्ग। आप गूगल कर सकती हैं, आप गूगल करें, हाउ मेनी इयर्स विल इट टेक फॉर द सन टू गो डार्क? लेट मी गूगल इट फॉर यू, होल्ड ऑन। अच्छा हाउ देखिए मेनी इयर्स विल इट टेक द सन टू गो डार्क? एक सेकेंड, मेरे ख्याल में 4 बिलियन था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लेट मी वेरीफाई। 5 बिलियन है, सॉरी जी, मैं आई वाज ऑफ बाय 1 बिलियन ईयर। 5 बिलियन ईयर्स के तो बाद ये बिग बैंग थ्योरी आ गई यहाँ पर। बिग बैंग कहां से आ गई बहन? ये वादी हमारा आप पढ़े। सूरज 5 बिलियन ईयर्स के बाद डार्क हो जाएगा, इसमें बिग बैंग कहां है बहन? बिग बैंग हुआ कि दुनिया स्टार्ट कैसे हुई है, नॉट द अदर वे अराउंड। ना बट द हमारा पॉइंट सन इज स्टार होगा। कि जो हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, तो यही बात सूरत दरियत में हुई है। ओके, हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, हाँ रियली? ओके, आपके मुझे कुरान में एक आयत दिखा दे जहां पे लफ्ज यूनिवर्स लिखा हो। अब वो हम पे है ना कि हम इसमें लिखा वी आर इट्स एक्सपेंडर, तो किसके? मतलब उसी की बात इट के लिए, मतलब इट किसका? वर्ल्ड पे इट ही क्या? रेफर हो रहा है ना। वो तो अर्थ का एक्सपेंडर है अल्लाह। अगली आयत पढ़े, रीड द नेक्स्ट वर्स। इट सेज कि वो जमीन का एक्सपेंडर है। अगली आयत पढ़े।
थैंक यू सो वेरी मच. तो यूनिवर्स का एक्सपेंडर तो नहीं है अल्लाह. तो वंस अगेन आपके मौलानाज और मुफ्तीज आपके साथ झूठ बोलते हैं. बहन ने अपने आप को म्यूट कर लिया. जी पॉइंट इज हम लोग बहनों की डिबेट हो रही है कि आप हमें कोई लॉजिकली बात बताएं ना. देखिए अब आप बहन कहीं से उठा के आप बोलना, आप पूरे तो कैसे करो ना, आप पूरे मानती हैं कि आपने जितनी भी साइंस पढ़ के मेरे पास आई थी वो सारे साइंस के फॉर्मूले आपके गलत साबित हो गए कुरान में. मानती हैं अभी तक? नहीं हो. नहीं नहीं मानती. ओके, गलत तो नहीं साइंस, साबित हो. तो साइंस तो पूरा करे ना. अच्छा, आपको पता है, आप ब्लैक होल की बात कर रही थी. अब आपने कहा था स्टार ब्लैक होल में गिरता है. स्टार ब्लैक होल में गिरता है. स्टार की देखिए अगर आप देखिए, मेरी बहन वही बता रही है कि ब्लैक होल जो है वो कर रहा है मैटर को सक, ठीक है, सराउंडिंग से, प्लेनेट से, स्टार से, तो वही बात तो हुई है. नहीं गिर सकता ना ब्लैक होल में. क्या फॉल करेगा? मैटर को सब करते हैं, ग्रेविटी होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा. वही बात बहुत ज्यादा होती है. ग्रेविटी होती है तो उसमें गिर नहीं सकता. कुछ टकराता है उससे, गिर नहीं सकता. अब Okay, let me tell you how the black hole. Let me tell you how the black hole is formed. आप इंटरनेट पे सर्च कर सकती हैं. मैं आपको छोटी सी साइंस की बताने लगा हूँ चीजें. आप जाके गूगल पे सर्च कर सकती हैं. ठीक है. आपको मेरी ये पेंट ब्रश नजर आ रहा है? जी जी. ओके. आप समझे ये हमारी अर्थ है. ठीक है. ये अर्थ है. ये है अर्थ. ठीक है. अगर इस अर्थ के डायमीटर को मैं 9 mm कर दूं, 9 मिलीमीटर, ठीक है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज्यादा हो जाएगी, इसको मैं स्क्वीज करके स्क्वीज करके स्क्वीज करके स्क्वीज करके सिर्फ 9 मिलीमीटर बना दूं, तो इसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये लाइट को भी एस्केप नहीं कर देगा. अच्छा देखिए, मैं कोई हम में से कोई स्कॉलर नहीं है, हम आपको अच्छी तरह डिबेट नहीं स्कॉलर की कर बात नहीं सकते. कर रहा. बहन मैं स्कॉलर की बात नहीं कर रहा, साइंस की बात हो रही है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लाम, वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस. ओके, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली जो मैं बता रहा हूं. अगर मैं अर्थ के डायमीटर को, अगर मैं अर्थ को चारों साइडों से पुश करूं, स्क्वीज करूं, और अर्थ को मैं 9 मिलीमीटर रेडियस पे लेके आ जाऊं, 9 mm रेडियस, 9 मिलीमीटर रेडियस पे, तो इसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इसमें से लाइट एस्केप नहीं कर सकेगी. लाइट विल नॉट बी एबल टू escape. दिस इज योर ब्लैक होल. ये आपका ब्लैक होल है. इसी को समझने की कोशिश करें. व्हाट इज ब्लैक होल? ये बात जब मोनस नामी गधा आया था तो मैंने उसे भी बताया था कि भाईजान ब्लैक होल में कोई चीज गिरती नहीं है, ब्लैक होल से टकराती है. ब्लैक होल इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट. हम उसे ब्लैक होल इसलिए कहते हैं कि हमें उसमें से कुछ लाइट एमिट होती हुई नजर नहीं आ रही है. क्योंकि लाइट एमिट होती हुई नजर नहीं आ रही है तो हमें लगता ही है कि वो होल है. वो होल नहीं है, वो डार्क एरिया है जिसमें लाइट इतनी एमिट ही नहीं हो सकती क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज्यादा है कि लाइट उससे बाहर नहीं जाती. सो ब्लैक होल इज ए सॉलिड सरफेस. इट्स सच अ सॉलिड सरफेस जिसकी इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल है कि उसके अंदर से लाइट नहीं निकल सकती. हम अर्थ को भी ब्लैक होल बना सकते हैं. अच्छा चलो साइंस को छोड़े, आप मुझे बताना, आप एथिस्ट हैं. अगर मरने के बाद आपको पता चलता है कि वाकई में इस्लाम था, तो आप पर हमारा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं जा रहा. ठीक है, हम बल्कि अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, सच बोलते हैं, अच्छे काम कर रहे हैं. अगर आपको मरने के बाद पता चला कि आप गलत थे तो फिर क्या होगा? मैं यही अगर वाली बात पे हम दूसरी बात कर लेते हैं. अगर मरने के बाद आपको पता लगा कि आगे श्री कृष्णा खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने मेरे कहने के मुताबिक तो जिंदगी गुजारी नहीं, तुम लोगों ने तो मोहम्मद की तरह बेवकूफी वाली जिंदगी गुजारी है. मैं तो कहता था कर्म करते जाओ और फल की कल्पना ना करो. मैं तो कह रहा था कि झूठ ना बोलो. मैं तो कह रहा था कि दूसरों के साथ प्यार करो, दूसरों के साथ नफरत नहीं करो. बहन मेरी बात सुने. अगर श्री कृष्णा खड़ा हुआ तो आप क्या करेंगी फिर उसको? तो क्यों भाई, वो लोग काहे को मान रहे? लिटरली आप मस्जिद वो उधर जाएं, चला आप किसी टेंपल पे जाएं, वहां आप 1000 रुपए देंगे, आपको मूर्ति की क्या क्या नहीं करवा देंगे आपको मूर्ति के साथ. बात ये है कि एक सेकंड, आप भी तो हज जब करने जाती हैं काले पत्थर की चुम्मी करने के लिए, तो आप करोड़ों रुपया देके जाती हैं. तो बहन बात ये है कि आपके पास सुन ले आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड पत्थर है. वो अगर एक पत्थर से मूर्त बनाते से फर्क नहीं पड़ता. हम बात करते अगर पे. अब अगर पे बात कर रहे हैं तो अगर पे रहे ना. अगर पे रहे कि आपने क्या, अगर अल्लाह हो गया तो प्रॉब्लम है. मैं कहता हूं अगर श्री कृष्णा हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी.
تو بیسیکلی اچھا، ہم آپ نے نے بڑی آفٹر لائف پتھر کو کی تو بات دیکھنا کی. نہیں. بہن سن لیں سوال, میری بات ختم ہونے دیں. ہم نے آفٹر لائف کو نہیں دیکھنا, ہم نے اس لائف میں دیکھنا ہے کہ ہم نے کس آفٹر لائف کو اپنانا ہے. دیٹ از دا پوائنٹ. اچھا, آپ پتھر کی بات کر رہے تھے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. اگر آپ کسی چیز سے اتنی محبت کرتے ہو اور اگر آپ کے پاس اس کی ایک کوئی خاص چیز رہ جائے, کوئی بھی چیز رہ جائے, آپ اس کو اتنا سنبھال کے رکھتے ہو اور آپ اس کو بار بار دیکھتے ہو. اگر آپ کو کوئی, آپ جس سے محبت کرتے ہو, اگر آپ کی کسی پیرنٹس یا کسی کا انتقال ہو جائے, آپ کو ان کے کپڑوں کی خوشبو آپ کو اتنی اچھی لگتی ہے, آپ اس کو زندگی بھر سنبھال کے رکھتے ہو. تو یہی بات ہو گئی ہے کہ جس چیز سے آپ محبت کرتے ہو نا, مطلب وہ چیز جو آپ کے ساتھ نہیں ہے, تو آپ بیسکلی کیا کرتے ہو کہ آپ اس چیز کو سنبھال کے رکھتے ہو. تبھی ہم اس کو چومتے ہیں, وہ اسی لیے چومتے ہیں کیونکہ وہ ہماری خاص چیز ہے. یہ نہیں نہیں کہ آپ ہم اس کی نہیں پوجا نہیں نہیں کرتے نہیں ہیں, نہیں اس نہیں کی نہیں عادت نہیں سے نہیں جاتے نہیں ہیں. نہیں, جھوٹ بول رہی ہیں. آپ کے نبی نے کہا تھا بلیک سٹون کو چومو, یہ آپ کے گناہوں کو ختم کرتا ہے. آپ کے نبی نے کہا تھا بلیک سٹون, کالا پتھر جو ہے, حجر اسود جو ہے, وہ آپ کے گناہوں کو ختم کرتا ہے. اٹ سوکس. تبھی تو جب بلیک سٹون آیا تھا, کالا پتھر آیا تھا, حجر اسود آیا تھا, وہ سفید تھا, اور لوگوں کی چمی چمی کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ کالا ہو گیا, کیونکہ وہ آپ کے گناہوں کو سوک کرتا رہا. میں آپ کو دکھایا تھا اسکرین کے اوپر تاکہ آپ کو ٹینشن نہ ہو. آپ کالے پتھر کو اس لیے نہیں چومتے کہ آپ کو کوئی اللہ کی پٹھی کے نیچے ایک پتھر تھا جس کو آپ کو پسند آ گیا اور آپ نے اسے چومنا ہے. نہیں نہیں, یہ دیکھیں بک آف حج, ٹھیک ہے. او عبد الرحمان, why do I only see you touching these two corners? He said, I heard the Messenger said, touching them erases sins. And I have heard him saying, whoever circulates second time, he feeling a slave. تو بہن, یہ آپ کالے پتھر کو اس لیے چومتی ہیں کہ وہ آپ کے گناہوں کو سوک کرتا ہے, اور جب کالا پتھر آیا تھا تو یہ سفید تھا. دیکھیں, چیز یہ ہے کہ جنت کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. یہ اگر آپ ہم کا کلیم بولتے ہے. ہیں کہ وہ ایسے بات تو, سنیں, جنت کی بات سنتے, جنت کی بات کرتے ہیں. لیٹس چینج ٹاپک اگین. اوکے شور. مجھے یہ بتائیے, قرآن کے مطابق جنت میں آپ اور آپ کی بہن گاؤ تکیے کے اوپر ٹیک لگا کے سبز کلر کے لباس میں سورہ الرحمان کے اندر لکھا ہوا ہے ویٹ کر رہی ہوں گی کہ آپ کے ہسبینڈ کب آئے, اور سورہ واقعہ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ گرم اونٹنی کی طرح گرم ہوں گی تاکہ وہ آئیں, وہ آپ کریں. تو جنت میں آپ اپنے مردوں کی غلام بنی ہوں گی, کبھی گھر سے باہر نہیں جائیں گی, ہمیشہ نہیں, جب ان کا دل کرے گا. اس ایک میں سیکنڈ یہ بہن, لکھا ہوا ہے کہ میں ہر چیلنج آدمی کرتا ہوں آپ ساتھ کو, میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے دکھا دیں جنت میں عورت باہر جائے گی. قرآن اور حدیث پوری کے اوپر چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی مرد آئے گا آپ ویٹ کر رہی ہوں گی اس مرد کا کہ وہ آ کے آپ کون سی ورس ہے؟ ایوری سنگل ورس آف دا قرآن. نہیں, آپ ورس پلیز ڈیفائن سورہ کریں. واقعہ آیت نمبر 32 سے لے کے 33 تک. ایک منٹ بتا دو انوائٹم صاحب. بتا دیا سورہ الواقعہ, انہیں ڈھونڈنے دے, میں دکھا بھی دیتا ہوں اسکرین پہ. سورہ واقعہ آیت نمبر 32 سے لے کے 36 تک میں لے کے آتا ہوں, یہ اسکرین پہ بھی لے آئے. فروٹ ابنڈنٹ ہوں گے وہاں پہ, نیور لمیٹنگ نور فاربیڈن ہوں گے, اینڈ بیڈ کے اوپر ریزڈ بیڈ, اونچے اونچے بچھونوں کے اوپر بیٹھی ہوں گی وہ انتظار کر کے, اور ہمیشہ کی ورجن ہوں گی, ہمیشہ ورجن, جتنی دفعہ آپ ان کے اتنی دفعہ وہ دوبارہ ورجن ہو جائیں گی. میں کیا کروں یار سیل صاحب, لکھا ہوا, میں جی کیا کروں. انمیوٹ کر لے. وہ ڈھونڈ رہی ہیں, وہ انہیں ڈھونڈنے دیں, وہ ڈھونڈ رہی ہے, جا رہی ہیں, وہ ان کو ڈھونڈنا پڑ رہا ہے بہن کو. سیل صاحب دیکھیں نہیں, گند بٹ جو ہے, آئی نیڈ ٹو کانگریچولیٹ بوتھ دی سسٹرز. یہ 3 سسٹرز ہیں, ایٹ لیسٹ وہ لوگ ڈسکشن تو کر رہے ہیں اور اچھے سے بات اپنی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ دے ہیو کم اینڈ ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹاک. ورنہ جو بالکل ہمارے بالکل عالم حضرات ہے, مولانا مولوی ہے, یہ تو اپنے بیویوں کے پلوں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے. بولو وی ہیو پروڈیوس, بولو اس میں تو یہ یار کیا یہ لکھا مجھے ہے کون نہیں پتا. چیپٹر نمبر 56 ورس نمبر 36 کیا لکھا ہے؟ دیکھو میڈ فار دیم. ایور ورجن, فار ایور ورجن. اگر آپ اس کی تفسیر دیکھیں گی تو وہ کیا کہتا ہے کہ جتنی دفعہ بھی آپ ان کے اندر ڈالو گے, یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ میاں کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ جتنی دفعہ بھی آپ ان کے اندر ڈالو گے اتنی ہی دفعہ یہ آپ کو ورجن ملیں گے. اب یہ میں کیا اب کروں اس چیز میں؟ آپ کا اللہ اس کہتا ہے میں کہ آپ اس مسلمان جو ہے نا وہ ڈی فلاور کرنے میں لگے ہوں گے آخرت میں,
they will be working on deflowering. They will be working on deflowering the woman. मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आपको आप ये देखिए, एक चीज ये देखिए, इसी की तफसीर पढ़ते हैं. ये कहता है the inhabitants of paradise which is the day. Okay, इधर लिखा है, किधर लिखा है, एक सेकंड यहाँ जाते हैं. हाँ, today the inhabitants of paradise are busy. paradise के inhabitants जो है ना मसरूफ हैं. वो कह रहे हैं read fa shugalin और fa shugalin obvious to what the inhabitants of fire are suffering, कि जन्नम के लोग सफर कर रहे हैं. delighting in the pleasure such as deflowering virgin. जन्नत के जो लोग हैं वो बिजी हैं लड़कियों को डीफ्लावर करने में. आगे कहता है नॉट बिजी विद एनीथिंग वियरसम, और कोई थकावट वाला काम नहीं कर रहे. एज देयर इज नो ट्रॉयल इन पैराडाइज, दे आर जस्ट रिजॉइसिंग ब्लिसफुली इन डीफ्लावरिंग वर्जिन्स. क्या करूं बहन? बट वो होता है ना, मतलब अपने जो भी महरम जो होता है उनके साथ होता है ना वो. बहन महरम ही कह रहा हूं. तुम महरम बन जाओगी किसी इंसान की और वो तुम्हें रोज सुबह दोपहर शाम मसरूफ होगा. जितनी दफा तुम्हारी चैप्टर नंबर 56 आयत नंबर 36, जितनी दफा वो अल्लाह उतनी दफा दोबारा बना देगा. सो अल्लाह ने एक बनाया हुआ हॉस्पिटल वहां पे. आपको जितनी दफा आपका ठोकू, क्योंकि वहां पे हस्बैंड तो बड़ी अजीब सी बात होगी, निकाह तो होना नहीं है, बच्चे तो होने नहीं है. जितनी दफा वो आपको डीफ्लावर करेगा, अल्लाह उतनी दफा ऑपरेट करेगा आपके ऊपर और आपको रीफ्लावर कर देगा, ताकि आपके मियाँ को, सॉरी मियाँ को नहीं, रीफ्लावर कर देगा, ताकि आपके बंदे को हर दफा आपको डीफ्लावर करके मजा आए. यार ये कैसी कैसी घटिया जन्नत है यार आपकी. यू कॉल दिस जन्नत? दुनिया में यार एक आपका किसी के साथ एक के साथ देखिए हिंदुओं में क्या होता है, एक के और किसी रिलीजन में एक के साथ कौन सा रहता है? यार बहन बात सुने, हिंदुओं को भी छोड़ दें फॉर द सेक ऑफ अल्लाह. पहले ये देखिए आपका अल्लाह क्या कह रहा है, उसके बाद जब आप अल्लाह को देख लेंगे, अल्लाह कह रहा है फिर हिंदुओं पे जाना, क्रिश्चियन पे जाना, यहूदियों पे जाना, एथियस्ट पे, सब जगह जाना. मतलब ह्यूमन को बनाया इसी तरह है ना. मतलब क्यों? अरे बहन बात सुने मेरी, अगर ह्यूमन को ऐसे ही बनाया है तो औरत को के लिए क्यों बनवाया अल्लाह ने? अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, के लिए बनाया था. मुझे एक बात बताएं, सुने, जन्नत में फरिश्ते करते हैं? वो इबादत करते हैं. वो मैं दोबारा से सवाल करता हूँ, क्या जन्नत में फरिश्ते? बहन मेरा सवाल कुछ और है, बहन मेरा सवाल कुछ और है, बहन मेरी प्यारी बहन सुने, मेरा सवाल कुछ और है. क्या फरिश्ते करते हैं? वो तो कुछ उनको आप ह्यूमन से नहीं करें ना कंपेयर, क्योंकि बहन मैं दोबारा से बोलता हूँ, नहीं करते. मेरा सवाल क्या? नहीं करते. मेरा सवाल क्या बहन? ऑब्वियसली नहीं करते, ऑब्वियसली. थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू गॉड. ओके यू आर वेलकम. अब आप गॉड नहीं है वैसे, लेकिन एनी हाउ बहन देखिए, एक चीज को समझने की कोशिश करें. अगर जन्नत में मर्द को 72 औरतें दी जाएंगी कि मर्द औरत को, और आपके अंदर से एक, आपकी इस दुनिया वाली औरत के अंदर से हसद निकाल लिया जाएगा कि जी मेरा मियाँ जो है ना 72 और औरतों को ठोक, तो मुझे हसद ना हो. तो मेरा एक सिंपल सवाल ये है कि जन्नत में अल्लाह मर्द को फरिश्ते की तरह क्यों नहीं बनाया था कि उसको तमन्ना ना रहे? अब देखिए वो सब तो अल्लाह के हाथ में ना, हर चीज का मकसद बना हुआ है. ओके मैं अब आपको एक बात बताता हूँ. अब नहीं, ये हमें नहीं पता, इसका जवाब मेरे पास है, मैं बताता हूँ. मोहम्मद जो था ना, वो कॉपी करता था तौरात और इंजील को, जैसा कि आपको पता ही है. लेकिन तौरात और इंजील में लिखा हुआ है कि जब जीसस से पूछा गया कि यार क्या हम जन्नत करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम फरिश्तों की मानी दोगे, जन्नत में बच्चे नहीं होने, लिहाजा तुम फरिश्तों की मानी दोगे. लेकिन चूंकि मोहम्मद एक ऐसा बंदा था जिसको ठरक और की बहुत नीड थी, उसने अपने बंदों को भी ठरक और कि भाई इस दुनिया में मेरे साथ जिहाद करने जाओ, मरोगे तो जन्नत में बच्ची मिल जाएगी, नहीं मरोगे तो इस दुनिया में मैं तुम्हें गुलाम औरत दे दूंगा. जैसा कि मैंने दिखाया था, मोमिनों की निशानी क्या है? गुलाम औरतों. तो भाई ये आपके मोहम्मद कहते हो, आप कहती हैं अल्लाह को पता हो, तो मैं कहता हूँ भाई एक बार आपका दूसरी किताब है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कुछ नहीं है वहां पे, यू विल बी लाइक ए स्पिरिचुअल एंजल. तो बहन बात यह है कि आपके मोहम्मद ने आप लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है और मर्दों को उठाया हुआ है. मुझे बताए 72 औरतों को मर्द ने क्या करना है? सारी उम्र
वो क्या वो बिजी रहेगा। देखिए आपके ट्रांसलेटर क्या ट्रांसलेट करें जलालुद्दीन कि जनाब बिजी रहेगा किस में, deflowering virgins. How stupid it is. Can you not realize that? देखिए ये सब तस्वीर पे डिपेंड करता है ना, वो मैं स्कॉलर नहीं हूँ। बहन तफसीर पे डिपेंड नहीं करता, आपको आयत में लिखा हुआ है कि इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस डिबेट को मैंने 3 पार्ट में क्यों रखा है, इसकी वजह आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।